Okay, students, when we come down to own opinion, what will you do that? As per my opinion, the slippers and all footwear need to be recognized rightly. अब हमने क्या किया, अपना विचार बताया कि हम क्या सोच रहे हैं कि स्लीपर्स को सम्मान मिलना चाहिए क्योंकि उसका उपयोग बढ़िया है. And it's due in development and evolution of the human civilization. I certainly agree. As I observe, बोल दिया, and realize that this invention by humankind is undoubtedly, हम मानते हैं कि ये बहुत उपयोगी रहा, ये विचार बोल सकते हो, मैं मानता हूँ कि बहुत important रहा, तभी civilization आगे बढ़ी. Right? Today the globe is an extended family. आज भूमंडल एक बड़ा परिवार है. As a human being adventure out, क्योंकि लोग बाहर गए, दूर दूर तक पहुंचे, and later conquered the different channels. बताया ना? Undoubtedly, as they traveled, it was only this invention that they helped them to travel. इसी invention के कारण वो दूर दूर तक पहुंचे और सब जगह को connect किया. बोल सकते हो? Right? Funny it may seem, ये बड़ा अजीब है, but slippers को ज़्यादा सम्मान मिलना चाहिए. बात समझ में आ गई? Now we come down to 7th summary. छोटा सा summary और conclusion छोटा सा है. It would be wise to agree that this invention on the feet is the reason that human civilization has progressed. मानना पड़ेगा. और invention हमें अजीब लगे but important है. खत्म. अब आ गया conclusion, last point. Surely the invention deserves salutation. उसको सम्मान मिलना चाहिए. Though it seems odd and funny, but invention deserves to be placed as crown for its role. यानी उसको सम्मान मिलना चाहिए. थैंक यू. एंडिंग पॉइंट हमने अच्छे पॉइंट से दिया. तो हम क्या कर रहे, पूरे विचार को जनन कर रहे. 3 मिनट बोल गए, किस विषय में? चप्पल पे. किस दिशा से? बस वही थॉट प्रोसेस यूज करके. तो जब हम चप्पल पे बोल सकते हैं तो बाकी विषय में जिनमें हमारी जानकारी है, सॉरी, where we have knowledge, we can speak yes or no, so that you have to do. चलिए, note this example on first sight seems difficult. पहले difficult लग रहा था, पर आप बोलने लगे तो बोल लेंगे क्योंकि आपके पास दिशा थी. You had directions, so elaborate and speak. Or this format helped you to originate. Yes or no, that's it. Now we go down. In case candidate does not have any knowledge of any current or social topic, ये point important है. Candidate must speak on a topic that is related to a personal view comfortably. Is it clear? Right? Got it? There is no compulsion that candidate if unable to speak should stand. 3 मिनट खड़े होने की जरूरत नहीं, चले जाए, जितनी देर बोलिए उतनी देर बोलिए. In this candidate is unable to generate view on any category, then the candidate must not block mind. कोई विचार नहीं, but move on to the other category. यानी इंट्रोडक्शन में अगर कम आ रहा है, हिस्ट्री भी कम आ रहा है, तो फैक्ट पे चले जाइए. Example, if the candidate is having no clue to speak on expert opinion, then candidate must move on to speak on opinion. कोई जरूरत नहीं, just ले बात रही है. Is it clear? Caution points. The candidate must couple good body language. आराम से relax होके बोलिए, so that the personality complements the lecture delivered. जो lecture आप दे रहे हैं वो अच्छा दिखे. The candidate must speak calmly and confidently. आराम से बोलिए, confidently बोलिए, खड़े हो जाइए, आराम से बोलिए. Candidate must look at all the candidates. अब candidate को देखिए तो don't look in a circle. Neither look in one person, but randomly कभी इधर देखा, कभी उधर देखा, आराम से. And don't get disturbed by others' view also. किसी से परेशान नहीं होना. ऐसा मत देखिए कि वो हंसने लग गया तो आप भी हंसने नहीं. Don't do that. Candidate must not get distracted. The tone of speech should be firm. सख्त बोलिए, but clear and loud enough कि सबको सुनाई दे. Is it clear? Okay. अब आइए important. The speech should emphasize more on clarity. साफ दिखना चाहिए, सुनना चाहिए, rather than fluency. Some people speak very fast. Don't do that. Speak clearly. साफ बोलिए. आपको मेरी बात समझ में आ रही है? Fluent है पर साफ होनी चाहिए. It should not be very, very fast. Like for example, if I speak, respect sir, my dear friends, I like to speak on this. अब समझ में नहीं आ रहा तो fluency नहीं, clarity, साफ. The word मैं आपसे कहूँगा, आपके
लेक्चर्स को थोड़ा छोटा करने के लिए मैं तब भी जल्दी बोल रहा हूँ, आप थोड़ा और सीमित और साफ बोलें। द क्लैरिटी शुड बी डिफिकल्ट, द वर्ड इन शुड बी वेरी सिंपल, नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कॉमन मैन वोकैबुलरी यूज करें। द कंटेंट डिलीवर शुड बी अंडरस्टैंडेबल, समझ में आना चाहिए क्या बोल रहे हो, एंड वेल इलुसिडेट, अच्छे एग्जाम्पल दीजिए ताकि वो और इंजॉइंग बने और क्लियर बने। क्लियर? ओके। द स्टैंडिंग पोस्चर आपका ज्यादा रिजिड भी नहीं होना चाहिए, ना इधर कैजुअल होना चाहिए, इट शुड बी राइट एंड वेरी फर्म। इज इट क्लियर? वो भी समझिए। रिस्पेक्टफुल, कॉन्फिडेंट पुश, देयर इज नो रीजन टू कीप स्टैंडिंग कि लास्ट बेल जब होगी तभी जाएंगे, अगर आपने जितना बोल लिया उतना बोल के बैठ जाइए। इज इट क्लियर? इट वुड बी बेटर टू स्पीक द लेंथ पॉसिबल एंड देयर आफ्टर गो डाउन। क्लियर? 1.5 मिनट 2 मिनट भी बोला, अच्छे से बोलिए और जाके बैठ जाइए, पर आप 3 मिनट बोल लेंगे, डोंट वरी। अगर 3 मिनट में आपको दिया एक वार्निंग देगा 2.5 मिनट, वार्निंग के हिसाब से अपना कंक्लूजन की तरफ बढ़ने लगी। डिक्यूरेट इज एंग्शियस एंड लैक्स, डोंट बिकम रेस्टलेस, आराम से बोलिए। रेपिटेशन, कैंडिडेट को डाटा की रिपीटिशन अवॉइड करनी चाहिए, बार बार एक चीज मत भूलिए। अलग अलग तर्ज पे विषय बोल सकते हैं बट रिपीट मत करिए। नाउ द कैंडिडेट मस्ट प्रैक्टिस एटलीस्ट 10 to 20 टॉपिक्स। मैं तो कहूँगा 40-50 बार बोलिए, आपको बोलने में विश्वास बढ़ेगा, यू विल बिकम अ गुड स्पीकर। डू दैट, बट ऑल्सो डेवलप फ्लुएंसी ऑफ थॉट्स, आपकी थिंकिंग भी बढ़ेगी, विचार की लय भी बढ़ेगी और आपका आत्मविश्वास। प्लीज प्रैक्टिस। आई हैव गिवन यू ओनली अ फॉर्मेट, बट इफ यू प्रैक्टिस इट इवन एट होम यू विल बिकम अ गुड स्पीकर। डू दैट। लिस्ट ऑफ टॉपिक आपके लिए कुछ बता देते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में इंडो चाइना रिलेशन, इंडो पाक रिलेशन, इंडो कनाडा रिलेशन, इंडो यूएस, इंडो रशिया रिलेशन, इंडो बांग्लादेश, इंडो इजराइल, China's increasing dominance, African Union, Russian-Ukraine crisis, voice for the global South, ये सब पूरे टॉपिक्स आपके पास हैं। ये पढ़िए ये टॉपिक को वन बाय वन। आपको एक बहुत अच्छी वेबसाइट है groupdiscussionidea.com, और भी लेक्चर की वेबसाइट्स मिलेंगी, पढ़िए, उससे मिलेंगे पॉइंट्स। इजराइल हमास वॉर क्या है, इंडिया मैरीटाइम पॉलिसी क्या है, इंडिया पैसिफिक रीजन क्या है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एंड ड्रेप ट्रैक क्या है, थोड़े थोड़े पॉइंट्स पढ़िए। अब याद रखिए पॉइंट्स थोड़े थोड़े हैं, लेक्चरेट की कला दोनों में बोल लेंगे। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई वांटेड टू हियर फ्रॉम। नेकलेस ऑफ डायमंड काउंटर पॉलिसी वो भी पढ़िए। रिलीजियन इम्प्लीकेशन ऑफ इजराइल हमास वॉर वो पढ़िए। वी विल बी गिविंग यू एक्स्ट्रा सपोर्ट, अलग अलग टॉपिक पे आपको देंगे, but that will be in the YouTube, but you will get it. Neighborhood first policy पढ़िए। Chandrayaan and its after effect on India status पढ़िए। India's performance in sports and international level पढ़िए। ये सब आपको मिल सकते हैं। अभी इतना ही काफी नहीं, और भी बहुत सारे, राइट। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़िए, G20, SCO, NATO, BIMSTEC, I2U2, ब्रिक्स, क्वाड, IPC, OPEC, सार्क, ये सब के बारे में। NAM ये भी आएगा आपको, मूवमेंट में आएगा। NAM, UNO, WHO, एशियन ये क्या है, G7, FVEY, ISA, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस ये क्या है, OECD क्या है, ब्रिक्स दोबारा शायद लिख दिया गया, नेवर माइंड। स्टडी टेक्नोलॉजिकल टॉपिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़िए। इंटरनेट ऑफ थिंग्स वो पढ़िए। डिजिटल थेफ्ट, डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल ट्रांजैक्शंस, ये सब टॉपिक्स हैं, यू हैव टू रीड। इंक्रीजिंग डिजिटल फुटप्रिंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन, क्या उसका असर है, पढ़ेंगे फिर इसको ट्राई करें। नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ AI, क्या उसके नकारात्मक असर है। क्वांटम कंप्यूटर के बारे में पढ़िए। साइबर बुलिंग, डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन सेक्टर वो पढ़िए। इज इट क्लियर? दैट्स इट। वेरियस रिक्वायर्ड रिफॉर्म्स इन इंफॉर्मेशन एक्ट वो भी पढ़िए। अचीवमेंट ऑफ इसरो ये पढ़िए कि इसरो में क्या क्या इसरो ने किया है, राइट। स्पेस टूरिज्म, स्पेस टेक, चैट GPT क्या है,
यूज ऑफ एआई मॉडल्स इन स्कूल, उसका क्या लाभ है। डिजिटल ट्विन पढ़िए, OSIRS RAX, ये भी टॉपिक ढूंढिएगा, मिलेगा, विल गेट इट। ई गवर्नेंस, ई पुलिस सिस्टम, इसके क्या बेनिफिट्स हैं बताइए, सब पढ़िए आपको, यू शुड रीड। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स गो, जस्ट सेकंड। द डिफेंस टॉपिक्स आए वो पढ़िए, ICBM, ब्रह्मोस, LCA तेजास, MK2, मैक 2 के बारे में, अग्निवीर, रिसेंट डील ऑफ राफेल, यूज ऑफ UAV इन मॉडर्न वॉरफेयर, डिजिटल वॉरफेयर, इंद्रचल, आयरन डोम, ये सब चीजें पढ़िए, यू विल एंजॉय इट एंड यू शुड हैव नॉलेज। मैंने बोला ना कि स्पीकिंग इंपॉर्टेंट है, अपडेशन भी इंपॉर्टेंट। LCH, प्रचंड, Astra, BVR, required reforms in DRDO, Defense Research Development Organization, PPP, model in defense sector, self-reliance in armament, हम लोग अपने पे आत्मनिर्भर हो, why are we buying so outside, that is what corruption comes. India is emerging defense market, ये पढ़िए। Imminent World War III like situation क्यों है वो पढ़िए। Diplomacy and defense, IAF, Indian Air Force, Indian Army और Indian Navy के बारे में भी पढ़िए, ये पढ़ना ही पड़ेगा। I'm quite fed up. What is the problem with this? Indian Navy, fighter aircrafts, missile system, tanks, अग्निवीर पॉलिसी बदल रही है, वुमेन इन आर्मी, साइबर सिक्योरिटी, ग्रीन ग्रोथ, डी-डॉलराइजेशन, INS विक्रांत, ये क्या है, इन डिफेंस एक्सपोर्ट, ऐसे करके आपके पास बहुत सारे टॉपिक्स बनते हैं, पढ़िए सब। Governance topic, women reservation, poverty, reform and reservation system, CAN, NRC, UCC, uniform civil code क्या है, slow judicial system क्या है, OTT platform regulation क्या है, NEP क्या है, skill development क्या है, medical infrastructure क्या है। मैंने बहुत सारे करंट टॉपिक्स आपको बताएं, घबराइए मत, थोड़े थोड़े पॉइंट्स पढ़ेंगे सब आएगा, and we'll give you support. That also is there. Now we'll come down, FG, corruption, 5G जिसको बोलते हैं 5G, corruption, vigilance, election commission क्या है, e-governance क्या है, ED, आजकल ED था, GST, population policy, foreign trade policy, railway privatization, modification, FSPA, north east में क्या है, right? Then we'll come down to journal topics, drug addiction, effect of social media, domestic violence, lifestyle disease, social topics है, climate change, carbon trading क्या है, COVID-19 से क्या सीखा हम लोग ने, Hollywood and its impact, Bollywood and its impact, regional cinema, इसका impact, yes or no? Then we come down, skill development, medical infrastructure, unemployment. I know you're getting bored, but you will have to go through all of this. Slowly, gradually you'll come. And we'll cover all this. But I've given you a list. Some boys were complaining, some boys did, कि सर वो लिस्ट मिल जाए, मैंने लिस्ट आपको दी। काफ़ी सारे इन टॉपिक में करेंगे, आपका 4 में से 2 कम से कम 1 तो मिलेगा ही। You will be able to speak. Skill development, medical infrastructure, unemployment, COP28, Kyoto Protocol, Montreal Protocol, traditional medicines in modern world, Indian culture, India of my dreams, importance of yoga. थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा. And then you will be able to speak a lot. Am I right? Yes or no? Impact of increasing fast food, India's soft power, हम लोग हैं ना सॉफ्टवेयर वाप, वुमेन एम्पावरमेंट कैसे करें, चाइल्ड लेबर, ट्राइबल कंट्रीब्यूशन टू इन्वायरमेंट कन्वर्सेशन, डिजिटल डिवाइड, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट, हलाल बैन इन यूपी, मणिपुर क्राइसिस, बहुत सारे टॉपिक्स, और धीरे धीरे इन पे बहुत कुछ आप प्रिपेयर कर लेंगे. पर्सनल टॉपिक, माय फेवरेट हॉबी, my favorite book, my favorite personality,
my favorite friend. I dream to be क्या बनना चाहते हो, short-term goal and its importance, hope is life, tough times educate, पूरे दिन सिखाते हैं, importance of discipline, my favorite game. Am I right? You do that. And I think you'll be coming to the end. So you have done this. These are all different lists. But what did you learn in an earlier one? How to develop thoughts, how to speak on it. Then you learned what? You learned what are the contents. Then you learned what? That you have to speak. Then you learned the different topics. That is all I want to say. I hope you will prepare yourself. Don't get disturbed by the list. The list was only to update you. And we will help you in creating the topic. We will give you pointers in separate videos in the YouTube channel. Thank you very much. Thank you so much. Jai Hind.